السلام علیکم دوستو، کیا آپ کے بال جھڑتے ہیں؟ اگر آپ ہیئر فال سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے بالوں کا جھڑنا ایک ہی مہینے کے اندر بند ہو جائے گا۔ آپ کے بال جھڑنے بند بھی ہوں گے اور آپ کے بال کالے، لمبے اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ دوستو جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو آپ کے گھر میں یا آپ کے نزدیک کہیں بھی آسانی سے مل سکتی ہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں سدا بہار کے پودے کی۔ سدا بہار کا پودا آپ کو نزدیک میں یا آس پاس کہیں بھی مل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پودا ہے، اس کی پتیوں سے آپ اپنے بالوں کا جھڑنا روک سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا نیچرل نسخہ ہے۔ دوستو چلیے جانتے ہیں کہ ہمارے بال جھڑتے کیوں ہیں۔ دوستو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اگر اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا پرابلم کا علاج جلدی کر سکتے ہیں۔ اب مان لیجئے کسی کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم آتی ہے یا کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر بہت طرح کی دوائیاں کھاتے ہوں گے، لیکن آپ کو اس سے کبھی کبھار فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ بیماری بڑی بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا علاج ایک تو جڑ سے نہیں کرتے اور دوسرا ہم بیماریوں کو خود نہیں سمجھتے۔ اب مان لیجئے کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو دوستو اس کے پیچھے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ آپ کے خون کا گاڑھا ہونا ہے۔ اور خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ خراب ہونے سے ہمارے خون میں گندگی مل جاتی ہے، تو دوستو یہ وجہ ہے ہائی بلڈ پریشر کی۔ اب اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنے پیٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے خون کو پتلا کرنا ہوگا۔ صرف اتنا کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے 10 سال سے یہاں تک کہ 20 سال سے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہیں اور آج تک ان کا ہائی بی پی نارمل نہیں ہوا، کیونکہ ہم بیماریوں کے پیچھے کی وجہ کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ ہیئر فال کی بات کریں تو ہیئر فال ہوتا کیوں ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ایک پودے کی جڑ میں آپ کو کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اگر پودے کی جڑ میں آپ کھاد نہ ڈالیں، مان لیجئے آپ نے پودے کے اوپر صرف سپرے کیا تو صرف سپرے کرنے سے وہ پودا گرو نہیں کرتا۔ جب تک آپ پودے کی جڑ میں کھاد نہیں ڈالیں گے، اور ایگزیکٹلی یہی ہم بالوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے بال جھڑتے رہتے ہیں اور ہم اوپر سے سپرے لگاتے ہیں، یعنی کہ سرم لگاتے ہیں، آئل لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، بہت سی اور بھی چیزیں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بالوں کا جھڑنا نہیں رک پاتا اور بال کالے اور گھنے نہیں ہو پاتے، کیونکہ دوستو ہم بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن نہیں دے رہے ہیں۔ بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملے گا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ جیسے آپ چیزیں کھائیں گے وہ اچھی چیزیں آپ کے بالوں کو جا کر نیوٹریشن دیں گی۔ اب مان لیجئے آپ نے کچھ ایسی چیزیں کھائی ہیں جو بالوں کے لیے ضروری ہیں تو وہ آپ کے بالوں کو مضبوطی دیں گی۔ ہمارے بال پروٹین سے بنتے ہیں، اس لیے ہمیں پروٹین والی چیزیں کھانی چاہیے، جیسے کہ آپ بھنے ہوئے چنے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر باڈی میں خون کی کمی ہے تو بھی بال جھڑتے ہیں، کیونکہ خون کی کمی ہونے سے ہمارے بالوں میں بلڈ کا سرکولیشن کم ہو جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایسی چیزیں کھانی ہیں جن میں آئرن زیادہ ہو، جس کے لیے آپ پالک کھا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے اگر آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں تو آدھے سے زیادہ پرابلمز تو آپ کی ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو بچی ہوئی آدھی پرابلمز ہیں وہ آپ سدا بہار کے پودے کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ سدا بہار کے پودے کی جو پتیاں ہیں ان کا آپ نے پیسٹ بنا کر اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ہفتے میں 2 بار اور لگاتار 1 مہینہ کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جھڑنا ایک دم بند ہو جائے گا۔ دوستو یہ بہت ہی بہترین اور آزمایا ہوا نسخہ ہے، اس سے آپ اپنے بالوں کا جھڑنا روک سکتے ہیں، بالوں کو کالا کر سکتے ہیں، لمبا اور گھنا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی طرح کے شیمپو، سرم کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ سدا بہار کے پودے سے آپ اور بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ چہرے سے جڑی ہوئی بیماریاں جیسے پمپلز، رنکلز، داغ دھبے۔ اب مان لیجئے آپ کے چہرے پر پمپلز نکلتے ہیں تو آپ کیا کیجئے، سدا بہار کی پتیوں
और उसके फूलों का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना ऐसा करने से आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए कोई दवाई खा रहे हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक बार इस नेचुरल नुस्खे को जरूर आजमा कर देखें। इतना ही नहीं दोस्तों, आप डायबिटीज यानी शुगर जैसी बीमारी को भी सदाबहार के जरिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका पेंक्रियाज का जो इंसुलिन का हार्मोन्स प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब इंसुलिन के हार्मोन्स का काम है बॉडी के अंदर शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जो हम गलत चीजें खाते पीते हैं उस वजह से हमारे पेंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की ताकत कमजोर हो जाती है और पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती और इस वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और हम कहते हैं कि उस इंसान को डायबिटीज हो गई है। अब अगर आपको डायबिटीज से छुटकारा चाहिए तो सदाबहार का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहेंगे। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि जब हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जिस्म कमजोर होता रहता है। अब जिस्म कमजोर होने के बाद हम कहते हैं कि डायबिटीज ने जिस्म को कमजोर कर दिया, लेकिन दोस्तों जो हम दवाइयां खाते हैं जिस्म हमारा उससे कमजोर होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाई लगातार खाते रहेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिल कमजोर हो जाएगा। आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी किडनी, आपका लिवर कमजोर हो जाएगा। किडनी फेल्यूर हो सकता है, लिवर फेल्यूर हो सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो दवाइयां खाने से होती हैं। इसलिए इन दवाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी मत बनाएं। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो अच्छी चीजें खाएं जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप सेहतमंद रहे। दोस्तों उसके अलावा आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी सदाबहार से ठीक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं? दरअसल कैंसर के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी यूज करती है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जब हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है और उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। अब दोस्तों जब कैंसर के सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को रोक नहीं पाती, तो ऐसे में वो सेल्स उस जगह पर एक ट्यूमर पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें खानी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों। जो चीजें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती हैं, जिससे कि कैंसर सेल्स बढ़ नहीं पाते। अब अगर आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बढ़ेगी, जिससे कि आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मोटापा हो चुका है, अगर आप मोटे हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप पतले हो जाएं, तो इसके लिए आप कई तरह के डाइट प्लान करते होंगे, जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने मोटापे को कम करना है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि सिर्फ खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल करने से मोटापा ठीक नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं फिर भी पतले हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी बहुत मोटे हैं। इसकी वजह है दोस्तों हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट। दरअसल हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो ये डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जिस इंसान का मेटाबॉलिक रेट कम होता है उसका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसान मोटा होने लगता है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको मोटापे को कम करना है तो अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होगा ताकि आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप
हर रोज खाते हैं तो इससे आपका मोटापा बहुत जल्द कम होगा। लगातार 1 महीना ऐसा करने से 5 से 10 किलो तक वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम सिर्फ एक सदाबहार के जरिए ही हम अपनी बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सेहतमंद रख सकती हैं, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। इसी वजह से हर इंसान आजकल बीमारियों से परेशान है। पुराने जमाने में हल्दी के जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता था, लेकिन आजकल हल्दी का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ सब्जी में। पुराने जमाने में हल्दी से रंग गोरा किया जाता था, हल्दी को चोट लगने पर इस्तेमाल किया जाता था, चेहरे के पिंपल्स के लिए, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग इन चीजों के फायदों को जानते ही नहीं हैं। पुराने जमाने में घर की किचन में लोहे के बर्तन होते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों था? दोस्तों ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, या उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। दोस्तों पुराने जमाने के उन लोगों को पता था कि लोहा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है। जब आयरन हमारी बॉडी में जाएगा तो नया खून बनेगा, इससे बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों पुराने जमाने में बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आप अपने फैमिली में सभी का हेमोग्लोबिन टेस्ट एक बार जरूर करवा कर देखें, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। वजह है कि हम लोग एल्युमिनियम के और नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। नॉन स्टिक के बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने से इंसान को कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम अपनी गलतियों से ही बीमारियों को बढ़ावा देते आ रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें अपने घर में पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। अब लाइफ स्टाइल का एक छोटा सा चेंज मैं आपको बताता हूँ, और वो है आपको अपनी डाइट का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। यानी कि पूरे दिन में जो भी आप खाते हैं उसमें से कम आधी चीजें ऐसी खाएं जो सीधी कुदरती आती हैं, यानी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपने अपने तरफ से कोई चेंज नहीं किया, ऐसी चीजें जिनको फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, ऐसी चीजें जो आपके किचन में पकाई नहीं गई। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी हुई है। लिविंग सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो हमें जिंदगी देते हैं। लेकिन आजकल बिस्किट, निमको, पिज्जा, बर्गर जो चीजें हम खा रहे हैं ये सारी चीजें डेड हैं, मरी हुई हैं। अगर इन चीजों को आप खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी जिंदा नहीं रह सकती। आपकी बॉडी के सेल्स आस्ते आस्ते वक्त गुजरने के साथ साथ मरते रहते हैं और आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी आप खाते हैं क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। हम 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में तो ये सोचते हैं कि हमें पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही डलवाना है, डीजल नहीं डलवाना। लेकिन ये जो हमारी बॉडी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा कीमती है, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। हम लोग बिना सोचे समझे सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी छोड़िए, आजकल ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब आपको पानी भी नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। दोस्तों ऐसा मत कीजिए अपनी बॉडी के साथ, नहीं तो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हो जाएगा, डॉक्टर की फीस पर खर्च हो जाएगा और आपकी जिंदगी सारी बीमारियों में ही गुजर जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसमें बताई हुई चीजों को आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं और फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।